Hi, welcome to all of you. Today we will discuss class 8 SST in SST civics portion, theme 3rd, chapter 5, judiciary. My dear student, if you will have remember my previous video, I have discussed this chapter, what is the meaning of judiciary and what is the role of judiciary and how he can preserve and protect the right of the common people. Judiciary is the key point of the democracy. It is independent body, it is constitutional body. No one can catch the right of the judiciary. So, judiciary is the boon for the democracy. This is the peak of the Supreme Court. I have already shown you in my previous video, and we have discussed also what is the role of judiciary, where I taught you that there is main three roles. Even the Supreme Court have various powers, but here we are discussing three because it is given in your textbook. The dispute resolutions. I have discussed. The Supreme Court have right to solve, to give the decision on any dispute which came फ्रंट ऑफ हिम, तो उसके पास है मेरी सुप्रीम कोर्ट में गई, उनका वो निराकरण करती है. जुडिशियल रिव्यू, गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाए जो कानून संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, उनको समाप्त कर सकती है. एंड अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. और जब कभी फंडामेंटल राइट्स का इनकॉर्चमेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करके गवर्नमेंट को ऐसा न करने के लिए बाध्य करता है. आई मीन टू से दैट हियर वी आर डिस्कसिंग द थ्री मेन judicial rights: the dispute resolution, judicial review, and upholding the law and enforcement of fundamental rights. I have discussed about that what is Article 21A, and in which article we can go in Supreme Court and High Court, in which article for the preservation of our fundamental rights. We have discussed a story, the Hakim Sheikh, and where we have seen that Hakim Sheikh condition is very dull, government not taking interest to solve their problem. The court, judiciary, instruct him that you have to provide all facilities because the fundamental rights were violated, and state government provide him their facilities. We have discussed. We have also discussed other cases where we have seen the structure of the court. In this paragraph, structure of the court, we have read that how many types of the court in India. I have discussed the apex court, that is called Supreme Court. Then after 25 high courts, which is established in the various states. Sometimes the courts play very important role for another state also. In India, the number of states is greater in the comparison of the high court. 25 high courts, and how many states? You have to tell me. How many states now that time? 28 states. That is a very important thing. आप देखें, and territories also. And then after apex court, Supreme Court, High Court, and District Court and Tahsil Court. This is the various branches of the court. I have already discussed all, and I have also discussed some important things.
what is the quality of the court. We have discussed a case, a writ were Lakshman and Sudha Ganguly. What happened and which type of decision taken by the various courts? February 1918, लक्ष्मण कुमार मैरिड सुधा गोयल. हमने एक कहानी पढ़ी लक्ष्मण कुमार और सुधा गोयल की, जहाँ सुधा गोयल को उसके परिवार वालों ने डॉरी के लिए जला के मार डाला था. डॉरी पहले लोअर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुधा गोयल की मृत्यु के लिए उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ को दोषी ठहराते हुए उन्हें मृत्यु की सजा दी. बाद में हाई कोर्ट से ये दोनों लोग, सभी लोग छूट गए. मामला फिर विमेन यूनियन के हाथ में गई. उन लोगों ने आवाज़ उठाई, एक लंबा अभियान चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से सुनवाई की और फिर आजीवन कारावास में इन दोनों को, लक्ष्मण कुमार और उनकी मदर को आजीवन कारावास की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई. इस प्रकार behalf of this case we can understand the power of the apex court. In India only one Supreme Court. He have a vast authority. उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं. इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा. We have discussed all in my video. Today we will discuss the next topic. What are the different branches of the legal system? Above the case of the dowry, death falls within what is the considered a crime against society and is violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law. Case you read in chapter 4 of the how a new civil law was passed in 2006 to protect women against the domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law. This is very important things कि आपको यहाँ पे ये समझना है आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में, कि जो व्यवस्था है, विधि की व्यवस्था है, उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं कौन सी हैं. कहता है what are the different branches of the legal system. The above case of the dowry, दहेज हत्या का ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध था और अपराध की श्रेणी में आता है, क्राइम की श्रेणी में आता है और ये आपराधिक फौजदारी कानूनों का उल्लंघन है. फौजदारी कानूनों के अलावा जो क्रिमिनल लॉ है, लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद द सिविल लॉ. केस you read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 and protect the women against domestic violence. आपने पढ़ा किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट 2006 में एक एक्ट पारित हुआ, बाद में कानून बना जो महिलाओं के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाता है. फौजदारी और दीवानी कानूनों के बीच के फ़र्क को समझने के लिए हमें नीचे दी गई जो लिस्ट है उन्हें समझना पड़ेगा. Criminal law, what is different with the criminal law and what is criminal law and what is civil law. If you will read this, you can understand easily. Criminal law deals with conduct or act that law defines of offense. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. It means first deals with conduct or act that the law define as offense. ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है. उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, उनकी हत्या करना, that is called criminal law. Second, it is usually being with the loading of first information report with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court.
इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एफआईआर दर्ज की कराई जाती है, उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है, दैट इज क्रिमिनल केस में। थर्ड, इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड। अगर दोषी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध कर दिया है तो उसको फाइन देना पड़ता है, उसे जेल की सजा होती है। लेट अस कम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल लॉ या दीवानी कानून? डील्स विथ एनी हार्म और जनरी injury or rights to individuals, for example disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matter, divorce case. A petition has to be filed before the relevant court by affected part one only in the recent matter. Either the landlord or the tenant can file a case. The court gives the specify relief asked for the instance in a case between the landlord and tenant. The court can order the flat to be vacated to pending rent to be paid. It means, if we will see the civil law deals with any harm or injury to right of individuals, for example disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matter, divorce के साथ। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है या उसका वायलेशन होता है, तब इस तरह के मामले सिविल लॉ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जमीन को यदि बेचा जाए या खरीदा जाए, उसे किराए पे दिया जाए और तलाक से संबंधित कोई विवाद हो, घरेलू विवाद हो, ये सारी चीज़ें सिविल लॉ के अंतर्गत आती हैं। इसमें प्रभावित पक्ष और न्यायालय, इट मीन्स कोर्ट और पिटिशंस हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली इन रेंट मैटर। आइदर द लैंडलॉर्ड और रेंट कैन फाइल केस। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है और अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। इन चीज़ों को यदि आप समझें तो आपको ये बातें समझ में आसानी से आने लगेंगी। तीसरा इसको और क्लियर करता है कि द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर द इंस्टेंस इन केस बिटवीन the landlord and the tenant. The court can order that flat to be vacated and pending rent to be paid. अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे अथवा बकाया किराया चुका दे। तो आप इन दोनों चीज़ों को समझ गए, क्रिमिनल लॉ क्या है और सिविल लॉ क्या है। सिविल लॉ में वो घरेलू मैटर्स, ज़मीन से जुड़े विवाद, पारिवारिक बातें, मकान, किराएदार, इन चीज़ों से संबंधित जो झगड़े हो वो सब सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किसी की हत्या कर दी जाए, किसी को लूट लिया जाए, दहेज हत्या हो, एफआईआर लॉज होगी, पुलिस जांच करेगी और उस व्यक्ति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में उसे उपस्थित करेगी। फिर कोर्ट उन्हें पनिश करेगा या उसे दंडित करेगा। पनिशमेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं वहाँ। ये सारे कार्य, ये सारे कृत्य क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? क्या सबको अदालत की शरण में अदालत में जाने का अधिकार है? अदालत से अपने अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार है? Let us come and discuss this paragraph. In the principle, all citizens of India can access the court in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in the
protecting our fundamental rights. If any citizens believe that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in the reality, access to court has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedure involve a lot of money and paperwork, as well as take up a lot of time for a poor person who cannot read and whose family depend on daily wages. Idea of going to court to get justice often seem the remote. It means if you will see this paragraph, it is very easy to say that the court is available and he will give justice. But the process is so difficult. The poor person, the illiterate person, they have to face so many difficulty to assess the court, to what न्याय पाने के लिए कोर्ट जाने में उसे सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ के कोर्ट की। अगर बात करें तो सिद्धांत प्रिंसिपली देखें तो भारत का सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू से कि एवरीवन हैव कोर्ट, लेकिन इसका अगर हम वास्तविक अर्थ में समझें तो प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। हमने इसको कई बार कहा, बताया आपको। इट इज एक्सप्लेन बाय मी अगेन एंड अगेन, इट इज ऑल्सो रोट इन बुक, बट द प्रोसेस इज सो डिफिकल्ट। एज यू नो दैट इन इंडिया देर आर वास्ट पॉवर्टी, देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ द इलिटरेसी, और इन दोनों के रहते एक सामान्य व्यक्ति को कोर्ट से न्याय पाने की दशा अत्यंत ही कठिन है, दुरूह है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया से न केवल काफ़ी पैसा और पेपर वर्क ज़्यादा होता है, बल्कि समय भी बहुत लगता है। और कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसका परिवार डेली बेसिस पे डिपेंड है, तो अदालत में इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसी बात को ध्यान रखते हुए 1980 की डिकेड्स में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में PIL रिट पिटिशन की जा सकती है। PIL रिट पिटिशन ऑलवेज इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ही आप इसको डाल सकते हैं, दे सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका, suppose you have faced so many difficulties and you have no money, you are also illiterate, with the help of some people or one people, Ram, Ramesh, Rahim, you write a letter and discuss their problem in the letter and send it in Supreme Court. Send it to Supreme Court. Supreme Court will take that letter एज ए PIL, उसको वो पब्लिक लिटिगेशन बिल के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उस पर सुनवाई करेगा। बदवा मजदूरों के मानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। यदि आप ध्यान से न्यूज़पेपर्स को पढ़ें आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। मिड डे मील प्राइमरी स्कूलों में दोपहर का खाना गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
ये प्रोवाइड कराने के लिए भी PIL दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, बताया। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. It allowed any individuals or organization to file a PIL in the High Court or Supreme Court on the behalf of those whose rights were being violated. The legal procedure was greatly simplified, and even a letter to telegram addresses to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early year, PIL was used to secure justice on the large number of issues such as rescuing the bonded, the laborers, inhuman work conditions, and securing the release of the prisoners in Bihar who had been kept in jail when after their punishment term was completed. Did you know that midday meal the children now receive in government and government aided schools is because of PIL? See this photo on the right and read the text below to understand how the came out. This peak, you have to observe this peak. There are 3 peaks given here, and read what it write here: photo 1, photo 2, photo 3. I hope you will read and you can understand what I am saying. So here I want to inform you, here I want to tell you that PIL is a better medium to express you. I mean to say that if you are illiterate, if you are poor and your capability is very limited, then you can write a telegram and send it to Supreme Court. Supreme Court take it as a PIL and take action against particular community, particular groups, particular person, particular institutions if they violated their fundamental rights. We have finest examples. In Bihar we have seen, बिहार में बदुआ मजदूरों को उनकी सज़ा पूरी हो जाने के बाद भी उनको जेल में रखा गया। एक बड़ी विकट समस्या थी और PIL डाल के इनको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हें मुक्त कराया। मिड डे मील की जो बातें थी उन्हें भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको वो चीज़ें भी इजीली समझ में आएंगी। फॉर द कॉमन पर्सन, access to the courts is access to justice. The court exercises a crucial role in the interpreting the fundamental rights of citizen, and as you saw in the above case, the courts interpreted Article 21 of the Constitution on the right of life to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. PIL, due to PIL, the midday meal scheme was started in India, and every and each government and government aided school for the students. आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने में कोर्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा, अदालत ने संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 21 के एक्सप्लेनेशन में ये बात कहा कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से इंक्लूड है राइट टू फूड, खाना भोजन प्राप्त करने का अधिकार, एंड इट इज इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट दैट यू हैव टू प्रोवाइड द फूड, यू हैव टू प्रोवाइड द मिड डे मील इन स्कूल्स फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अदालतें कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन पे आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में
झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। इट विल सी द जजमेंट ऑफ द ओल्गा। आई विल नॉट एक्सप्लेन द पर्टिकुलर paragraph. You have to read, and if you are in doubt, you can discuss me in my online classes. The another issue that affects that common person access to justice is the inordinately long number of years the court takes hear a case. The first justice delayed, it justice denied. A phrase justice delayed, it justice denied is often used to characterize this extended time period that court take. आज के समय जबकि फैसलों के लिए जो नियम बने वो काफ़ी लंबे जाते हैं, इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में, डेमोक्रेटिक इंडिया में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने, इट मीन्स जुडिशरी ने, कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, उनकी पावर को कंट्रोल किया। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने न्यायपालिका को बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और हमारे लिए एक लोकतंत्र की बुनियाद हो। इफ सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट देन हाउ कैन पॉसिबल देन दे टेक एक्शन अगेंस्ट the corrupt people, the corrupt politician, the corrupt executive officers. So our constituent assembly member, they were foresighted. They know that in future the Indian people have faced to such type of problem, and we have to manage. We have to set up a rule, constitutional rule. Behalf of that, they can easily take justice. That is the very important. इस तरीके से आपने इन चीज़ों को पढ़ा, आपने देखा कि कोर्ट, जुडिशरी और जुडिशरी किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। यदि किसी भी अधिकार However, in spite of these, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democracy India. कुछ भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का डेमोक्रेटिक कंट्री में महत्वपूर्ण स्थान है। इट मीन्स वी कैन नॉट डिनाई दैट द सुप्रीम कोर्ट play a very important role, a crucial role in the democratic country. It is not only beneficial for India, it is also beneficial for all the democratic country, serving as a check on the power of the executive and the legislature, as well as in the protecting the fundamental rights of citizens. The member of the Constitutional Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. ये कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है. It means it is no hesitation to say कि जुडिशरी ही वो संस्था है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की शक्तियों पे कंट्रोल करती है, उन्हें एनार्किस्ट होने से बचाती है, उन्हें रोकती है. जुडिशरी इज अ बून फॉर डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने में जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसे रूल्स बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत आप इसके अगेंस्ट, या हाई कोर्ट में तुरंत आप अपने फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट
रिट पिटिशन कर सकते हैं, PIL दाखिल कर सकते हैं और इसके माध्यम से त्वरित डिसीजन, त्वरित न्याय आपको कोर्ट उपलब्ध कराती है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड यूनिक करेक्टली एनविजन्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों को शायद ये बात पहले से ही पता थी, उन्होंने इसको देखा, समझा होगा और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की होगी कि भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम्स भारतीयों को, कमज़ोर वर्ग को, गरीबों को न सहना पड़े, इसलिए उन्होंने इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स, यू हैव नो प्रॉब्लम when you solve this question, exercise questions. Here सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट आपको 3 बना के रेक्टेंगल में समझाया गया है। यहाँ पे ग्लोसरी के कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आप समझ लें। एक्विट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्विट? कहता है एक्विट का मतलब छोड़ देना, अदालत से बरी कर देना, फ्री कर देना। Acquit means this refer to the court declaring that the person is not guilty of the crime which she was tried for by the court। जब कोर्ट में किसी व्यक्ति को दोषमुक्त कर देता है तो वो उस वर्ड के एक्विट वर्ड, लीगल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टू अपील, अपील करना। इन द कॉन्टेक्स्ट दिस चैप्टर रेफर द पिटिशन filed before the higher court to hear a case that has already been decided by a lower court. Compensation, I think you know about that compensation. The evictions, evictions means बेदखल कर देना। Evictions means in the context of this chapter this refer to the removal of the person from land homes that they are currently living in। आपको आपकी ज़मीन से हटा देना, बेदखल कर देना। एंड लास्ट वर्ड है वायलेशन, या इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने कई बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इन चीज़ों को समझिए, इन्हें पढ़िए और कोई डाउट होती है तो यू कैन डिस्कस मी इन माई ऑनलाइन क्लास। ओके, गुड बाय and take care।